privilege of inviting our Honorable Chief Guest, Dr. J.K. Jaina, the dual DDG, for his valuable address. Good morning, everyone. Dr. Behera, CNFDB, Dr. N.P. Sahu, Director of this esteemed institute, Dr. Debajit Sharma, who is the convener of this program. We have two important guests who are there. They were present in the front row, Dr. Atul Jain, who was associated with this institute, and in the sector of ornamental fish. Dr. Chadda, who was heading again the division of aquaculture production, I think. So he was associated with all those. My esteemed colleague, HOD, senior level of faculty members, student friends, and I do understand that we have several entrepreneurs, students, and participants of this workshop. It feels uh, definitely a joy. I feel joy to see so many people. I never knew that such program is there in the morning. Dr. Sahu told me that even if you come in the morning also, it is okay because our program starts in the afternoon. And the agenda was given also 5 o'clock to 7:30. So I thought afternoon only I should speak. Now he said that it is a program 10:30 we have to speak something. Then I thought if I speak morning, same thing again I have to repeat in the afternoon. Then people will say same thing again. He is telling at same place, same thing speaking is not good, isn't it? Anyway, does not matter. It is maybe hall is full. Some students are maybe students or I do not know, or the participants of the workshop are standing. Dr. Behra was mentioning that we need to have a bigger auditorium, more money. But I should not say. Better not to say. Better not to say, because this institute has refunded 19 crore rupees. The money what we had given already, so much of money is available. Money is not a problem, but there are several other issues. Not that the institute does not want to spend, they want infrastructure, but there are several issues. It is not that if you have money at the personal front, you can do anything. In a government system, you have to have several formalities and that all. I am sure in the coming next 2 3 years, all these facilities will be in place. We will be providing enough money to this institute from education division also. Already I have promised, so no problem. That is not an issue at all. Coming to the ornamental fish, how important ornamental fish is. Probably I do not know. When I was small kid of going to the school standard 2, 3 and all, before going to the exam, we used to have a Horlicks bottle, no? That time Horlicks bottle used to come in glass. We used to have a fish inside that Horlicks bottle. Before going to for exam, we need to see that and go. And they used to say that if you see and go, exam you will 100% mark you will get. So that is the story. Even not that 50 years back we were believing that. Even today also people believe. If you have arowana in your home in Southeast Asian countries, you will have a property, you will have a good son-in-law, or having earning so much of money. So you may have so much of money, maybe lottery you will get. That is what people believe. No, it is not a belief. Probably for example, if you have a aquarium at home, if you are alone, what you do? If you are sitting at the maybe your drawing room, आप ड्राइंग रूम में जब बैठते हैं, आपके पास कोई भी मछली है, तो आप देखते रहते हैं कैसे मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे खा रहा है. इवन उनको खाना जरूरी है या नहीं, एक बार देना पड़ता है, 2 बार देना पड़ता है, फिर भी बीच बीच में जाके 1 2 ड्रॉप डाल देते हैं, कैसे खाता है देखते हैं. द एन्जॉयमेंट यू गेट, जितना आपको खुशी लगता है उसका वैल्यू कितना है, कभी एसेस किए हैं? शायद एसेस करना ज़रूरी है, क्योंकि खुशी के लिए तो सब करते हैं. आज जो पहने हैं आप, जूता पहने, शर्ट पहने हैं, क्या जो भी कॉस्मेटिक्स लगाए हैं, किसके लिए? खुशी के लिए, क्योंकि 2 लोग देखेंगे आपको.
देखेंगे, थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। कौन अप्रिशिएशन किसको अच्छा लगता नहीं? सब बोलते हैं अप्रिशिएशन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अप्रिशिएशन अच्छा लगता है। नहीं, सभी को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है। ऐसे नहीं है कि जो लोग आप लोग ट्रेनिंग में आए हैं सब लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप बिजनेस शुरू कर देंगे, बट आप घर में भी रखना चाहते हैं एक्वेरियम, वो भी ज़रूरी है। कौन सा मछली रखेंगे, कौन सा मछली के साथ और कौन सा डाल नहीं सकते, डाल तो सकते हैं बहुत चीज़, कौन सा नहीं डाल सकते, कौन सा मछली के साथ, वो अतुल जैन साहब शायद बोलेंगे ज़्यादा, कौन सा मछली नहीं डालना चाहिए। ओके, ये जरूरी है, खा लेगा दूसरों को खा लेगा। तो ये सब फॉर एग्जाम्पल लोग बोलेंगे कि मुझे जानना क्या ज़रूरी है, वो जो एक्वेरियम दुकान है वो आके इंस्टॉल कर देगा, इंस्टॉल करके, क्योंकि जो खरीदते हैं वो आके इंस्टॉल कर देगा, हमारा क्या ज़रूरी है। ज़रूरी है फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घर में भाड़े में है, आपके घर में एक्वेरियम है, दूसरा घर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम में तो ऐसे पानी के साथ एक्वेरियम लेके नहीं जाएंगे, पानी को निकालना है, मछली को दूसरा जगह पर रखना है, फिर जो नया घर जाएंगे फिर इंस्टॉल करेंगे। आपका एक्वेरियम का दाम जितना नहीं है, आप दुकान वाला को बुलाएंगे, वो एक्वेरियम से भी ज़्यादा पैसा ले लेगा 2 बार इंस्टॉल करने के लिए, 1 बार निकालेगा, दूसरा बार इंस्टॉल करेगा। तो ये छोटा छोटा भी चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के दिन में जानना। जानकारी सबसे आज के दिन में सिर्फ मछली एक्वेरियम में बारे में नहीं, कोई भी प्रोफेशन हम लेते हैं, मछली पालन करते हैं या खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, सबसे ज़्यादा आज के दिन में ज़रूरी है वो नॉलेज डेफिशिएंसी। आज के दिन में भारत जैसा कंट्री में नॉलेज एंड स्किल दोनों चीज़ का ज़रूरी है। स्किल तो ज़रूरी है ज़रूर, नॉलेज का भी अभाव बहुत है। देन आपको लगता है आज के दिन में, क्या आप लोगों को ज़माने में शायद नॉलेज का ज़रूरी था, क्योंकि किताब आपके पास होगा तो किताब में पढ़ेंगे तो, और या टीचर पढ़ाएंगे तो आपको जानकारी होगा। आज के दिन में तो हर चीज़ गूगल में मिल जाता है, वही ना, टेलीफोन में डाल देने से, टेलीफोन आपके पास तो सबके पास स्मार्टफोन होगा, इसे कहीं यहाँ एक भी कोई नहीं होंगे जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, सबके पास स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, एंड आप डाल देंगे कीवर्ड 2-4 डाल देने से बहुत चीज़ आ जाएगा। लेकिन आज के दिन में जो इंफॉर्मेशन एज में वो इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है, you get sometimes you do not know which one is correct, which one is wrong। ये सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने से ऐसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, पूरा अपोजिट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसीलिए ये सही जानकारी होना ज़रूरी है। तो मुझे पूरा भरोसा है, ऐसे जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ जितने रिसोर्स पर्सन होंगे तो सही रास्ता आप लोगों को दे सकते हैं। सिर्फ आज के दिन में जब हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री, मुझे पता नहीं शायद कितना इंडस्ट्री कितना बड़ा है ग्लोबली। लोग बोलते हैं कि ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री अबाउट $20 बिलियन इंडस्ट्री बोलते हैं, मुझे पता नहीं कितना करेक्ट नहीं है, बट इफ $20 बिलियन का इंडस्ट्री है ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री, ऑर्नामेंटल फिश का इंडस्ट्री कितना है, मे बी 1 बिलियन 2 बिलियन, नॉट मोर देन दैट। सो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऑर्नामेंटल फिश के जो ट्रेनिंग में आते हैं सिर्फ मछली के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मछली को छोड़ के भी, मछली तो एक बार डाल दिए 4 महीना 6 महीना 8 महीना 2 साल डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज व्हाट यू हैव, वो रहता है। लेकिन डेली आपको जो चाहिए उसका खाना चाहिए, आहार चाहिए, तो आप क्या हर टाइम में बाहर से खरीदना ज़रूरी है। जो आज के दिन में जो आप ऑर्नामेंटल फीड लाते हैं बाहर से, आप देखे होंगे छोटा छोटा पैकेट में मिलता है एक, एंड वो छोटा पैकेट जब खरीदते हैं 100 रुपया, आपको लगता है सस्ता है 100 रुपया है, लेकिन किलो जब हिसाब कर देंगे वो 2000 रुपया 3000 रुपया 4000 रुपया किलो हो जाएगा। देन आप उसका कॉन्स्टिट्यूएंट भी आप पढ़ना शुरू कर देंगे कि केस कहाँ से बना, 4000 रुपया किसके लिए, इसमें तो सिल्वर नहीं होगा या गोल्ड नहीं होगा, इतना पैसा क्यों होना चाहिए। हम बोलते हैं मछली को जो खाना देते हैं, प्रोटीन देते हैं, वेजिटेबल प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन तो इतना कॉस्टली होता नहीं है, विटामिन मिनरल तो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता नहीं। 4000 रुपया क्यों होना चाहिए, क्यों है 4000 रुपया। आप खरीदते हैं कोई दुकान से, वो
शायद 3,000 रुपया से खरीदा होगा, आपको 4,000 रुपया, मैं किलो हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप लोग खरीदेंगे 4,000, 3,000 रुपया से खरीदा होगा। वो खरीदता है जो होलसेल मार्केट से, वो 2,500 से खरीदा होगा। देन वो कहाँ से लाया होगा? चाइना से लाया होगा, थाईलैंड से, ताइवान से लाया होगा। कितना उसके लिए वो शायद गया होगा चाइना एक बार, उसका पैसा भी जोड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का पैसा जोड़ेगा, और वो चाइना जो वो लोग भेजे होंगे 2,000 रुपया में भेजेंगे या 1,500 में भेजे होंगे। पैकेजिंग में कितना पैसा होगा, एडवर्टाइज में कितना होगा, उनके टैक्स कितना दिए होंगे। टैक्स तो एक बार नहीं 4-6 बार टैक्स दे दिए होंगे। पहले ये इंडिया में 2-3 बार वो लोग टैक्स लिए होंगे, इम्पोर्ट टैक्स, वाटर टैरिफ, कितना कितना होता है। एंड फाइनली प्रोडक्शन कॉस्ट होता है 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, जो भी है। तो दैट मीन्स वो ओरिजिनल कॉस्ट इतना है। क्या हम घर में हमारा एटलीस्ट बेचना छोड़ दीजिए, लिव अबाउट डूइंग बिजनेस। इफ आपका घर में आप एक छोटा भी एक्वेरियम रखते हैं, क्या हम घर में उसके लिए खाना बना के दे सकते हैं क्या? ये भी जानना जरूरी है। ये दे सकते हैं तो कैसे बनाएंगे? हम बोलते हैं बादाम का खल्ली या सोयाबीन या फिश मिल्क, कहीं कहीं इंग्रेडिएंट तो मिल जाएगा। एंड तरीका कैसे होना चाहिए, या मिला देने से हो जाएगा या इसको कुछ कुकिंग करना पड़ेगा? कुकिंग करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किसके साथ क्या डालेंगे, बाइंडर क्या होना चाहिए, फ्लेक कैसे बनाएंगे, ग्रैन्यूल होना चाहिए या फ्लेक होना चाहिए, ये सब के बारे में जानकारी। एंड हम लोग बहुत अच्छे हैं जुगाड़ करने में, बहुत अच्छे हैं। वी आर वेरी गुड इन डूइंग जुगाड़। जो बोलते हैं ना फ्रूगल इनोवेशन, फ्रूगल इनोवेशन में इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी करते होंगे बहुत। कोरोना काल में क्या हुआ, ये एक्वेरियम दुकान सब बंद हो गया, आप लोगों को पता होगा, हर दुकान बंद हो गया। मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल आया, क्या करें सर, हमारा मछली मर रहा है, खाना नहीं है। हम जो चावल फावल खाते हैं देते हैं, लेकिन वो खाता नहीं है, तो क्या करें? तो इमीडिएटली मैं 2 इंस्टीट्यूट को फ़ोन किया। देवजीत, यू आर देयर एट दैट टाइम। भीमताल को फ़ोन किया एंड शिवा को फ़ोन किया। मैं बोला कि 3 दिन में एक मुझे कैसे भी एक्सपेरिमेंट करके दो 4 फार्मूला जो दूसरा घर को नहीं जाएंगे, वो अपना घर में जो भी इंग्रेडिएंट मिलेगा उनसे खाना बना के, जैसे वो एटलीस्ट मछली मरे नहीं, जिंदा रखना है। एंड विद इन 1 वीक 2-3 फार्मूला मेरे पास आ गया, जो मैं ऑनलाइन में सबको छोड़ा एंड पीपल अप्रिशिएटेड। घर में कुछ नहीं है तो आटा होगा और कुछ ना कुछ दाल होगा, ये होगा, जो प्रोटीन थोड़ा मिला के, ग्राइंडर तो सबके घर में होता है। तो ज़रूरी होता है छोटा छोटा चीज़ भी जानना ज़रूरी है। आज के दिन में सिर्फ ये नहीं, आप फीड तो मिल जाएगा, पानी क्वालिटी भी कैसे मैनेज करेंगे वो पता होगा, लेकिन बीमारी आ गया, सडनली बीमारी आ गया, आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? कौन सा दवाई देंगे या दवाई देना ज़रूरी है नहीं है, कहाँ से लाएंगे, कौन सा बेस्ट है, ये सब छोटा छोटा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एवं कोई फंगल अटैक आ गया, आप लोग देखे होंगे विंटर में सबका घर में जो एक्वेरियम रखते हैं, सबके पास वो थर्मोस्टेट नहीं रहता है, वो जो हीटर दे के थर्मोस्टेट कंट्रोल रहता नहीं है, क्योंकि सब चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो कुछ बीमारी आ गया तो ये कैसे मैनेज करने के, क्योंकि एक मछली मर गया तो वो पैसा तो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों को लगाव हो जाता है। Many people do not keep aquarium on a fear that मछली जब मर जाएगा हमको अच्छा नहीं लगता है। आप लोग देखे होंगे घर में कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, आप लोग कोई बिल्ली कुत्ता भी मर जाता है, कितना दुख लगता है। छोटा, आपको तो जितना दुख लगता है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 2-4 दिन खाना भी बंद कर देते हैं, ऐसे ही लगाव हो जाता है। सिमिलरली फिश, ऑर्नामेंटल फिश इज वन ऑफ द पेट एनिमल, जो हम बोलते हैं आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा, शायद मुझे पता नहीं, कुत्ता जैसे पेट एनिमल है, मछली भी सिमिलर पेट एनिमल है। तो हमारे लिए ये छोटा छोटा चीज़
जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक्वेरियम रखूँगा, कहाँ से कौन सा लाऊं, एक्वेरियम कहाँ से लाऊंगा, मछली कहाँ से लाऊंगा, या खाना कहाँ से लाऊंगा, एक दुकान में सब लाऊंगा क्या, या अलग कहीं जगह भी हो सकता है। पहले क्या होता था, ऑर्नामेंटल एक्वेरियम जब घर में डालते थे, प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट हम डालते थे तो वो प्लास्टिक का मिलता था। आज के दिन में कोई प्लास्टिक रखना नहीं चाहता है, ऑर्नामेंटल प्लांट रखना चाहते हैं। आज के दिन में ऐसे नहीं है कि आप ऑर्नामेंटल ट्रेड को भी, आप प्रोफेशन को आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि ओनली ऑर्नामेंटल फिश को चुनना है। यू कैन थिंक ऑफ डॉल, यू कैन थिंक ऑफ अदर एसेसरीज, यू कैन थिंक ऑफ इवन जो पत्थर देते हैं नीचे, वो भी एक बड़ा बिजनेस है, नीचे भी डाल सकते हैं। या ऑर्नामेंटल प्लांट जो आज के दिन में जो नानो एक्वेरियम छोटा मोटा बोलते हैं, नानो या मिनी जो भी बोलते होंगे आप लोग, तो हर के लिए अलग कौन सा बड़ा एक्वेरियम जो बायोटॉप बोलते हैं, बड़ा एक्वेरियम के लिए क्या होना चाहिए, छोटा एक्वेरियम में लिए क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जानकारी होना जरूरी है। कौन सा मछली रखेंगे, फ्रेश वाटर में रखेंगे या मेरीन रखेंगे, या मेरीन रखेंगे तो कौन सा रखेंगे। आज के दिन में सबसे ज़्यादा तो शायद लोग धीरे धीरे जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, मेरे पास आज घर में कम इनकम है तो छोटा एक्वेरियम रखूँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाता है बड़ा रखूँ, और ज़्यादा पैसा है तो बायोटॉप जैसे रख दूँ, या स्विच ओवर करूँ फ्रेश वाटर से मेरीन। जब हम जाते हैं कहीं रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में, देखते रहते हैं कौन सा मछली अच्छा लगता है, मैं वही कोशिश करूँगा घर को भी वही लाने के लिए। जब डैमसेल एंड क्लाउन देख लेते हैं कहीं, मेरे पास फ़ोन आता है, मैं एयरपोर्ट में देखा था बढ़िया दिख रहा था, तो हम क्या दिल्ली में लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, लेकिन घर में रखना मुश्किल है तो वो भी एक चैलेंज है। इफ़ यू आर डूइंग ए बिजनेस इन चेन्नई, ए मैरिन ऑर्नामेंटल, जितना लोगों को अट्रैक्शन होगा वही दिल्ली में करने से ज़्यादा लोग, क्योंकि एक एडवर्स सिचुएशन में भी आप मैरिन ऑर्नामेंटल रख रहे हैं, तो बिजनेस कैसे करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक द ओपिनियन ऑफ द पीपल। लोगों को क्या चाहिए वो भी मार्केट पहले जानना जरूरी है। मेरा जो साथी था, मैं उनको पूछ रहा था इंडिया में एक्वेरियम का दुकान कितना दुकान है। मुझे पता है, मैं आई कम फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर। मुझे पता था जब हम एक ही दुकान था भुवनेश्वर में, लेकिन आज के दिन में कोई मुझे बोला 500 से ज़्यादा दुकान हो गया, पता नहीं। नहीं, देन द असेसमेंट दे डिड, वो पब्लिश हो गया 20,000 दुकान है आज के दिन में इंडिया में, तो 20,000 दुकान है। 20,000 दुकान होगा तो कितने लोगों से वो खरीदते होंगे, वो भी देखिए ना, कितने लोगों से खरीद। ऐसे नहीं है कि एक दुकान एक जगह से खरीदेगा ना, एक दुकान 10 जगह से भी खरीद सकता है, 20 जगह से भी खरीद सकता है, क्योंकि नाम से हम बोलते हैं कि हम गोल्ड फिश रखते हैं। या आज के दिन में इंडिया में कितना टाइम में बोल सकता हूँ, और 2-4 मिनट, ओके। इंडिया में लोग बोलते हैं कि इजी फिश हम लेते हैं, लाइबियरस, रेड सोटेल, ब्लैक मॉली, क्या है यही गुप्पी जो भी रखते हैं, इजी है। लेकिन आज के दिन में वो एक स्पेसिस है। आज के दिन में जो वेरिएंट आ गया, जितना वेरिएंट्स है, और तुलसी जी ने ज़्यादा बोलेंगे गोल्ड फिश, हम तो गोल्ड फिश बोलते हैं, लेकिन गोल्ड फिश का जितना वेरिएंट्स है आज के दिन में, एक वेरिएंट को लेके आप चलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। 2 वेरिएंट को लेते हैं, दैट इज एनफ। इफ आप ओनली बबल आई करते हैं, बेल्टेल करते हैं, या टेलीस्कोपिक आई करते हैं, वो तो पुराना चला गया। आज के दिन में जो नया वेरिएंट आ गया कोई का, फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द कोई का, रिसेंटली 2 साल पहले मैं, हमारा एक संस्थान है NBFG, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्रेजेंटिंग रिसोर्सेज एट लखनऊ, देन आई टोल्ड देम व्हाई डोंट यू बिकम ए रिसोर्स सेंटर फॉर द कोई का, that you supply brood to all those industry in the country. Then वो बोले कि हमारे पास अच्छा नहीं है, स्टॉक अच्छा नहीं है। Then I told okay, you go ahead, at least 20-30 तो आप इंपोर्ट कर लीजिए कहीं से अच्छा। Each of the brood fish of about
I think 50 to 100 gram size, best quality we tried to purchase. एक ऑन एन एवरेज हम पे किए 20,000 रुपया। 20,000 रुपया एक मछली 50 से 100 ग्राम का। तो यू कैन नो दिस प्राइस ऑफ सम ऑफ द गुड वेरिएंट्स। आप लोग जब इवन मुंबई में आप एयरपोर्ट में जाते हैं, आप देखे होंगे जब नीचे वो सीढ़ी में निकलते हैं वो साइड में क्या क्या ब्यूटीफुल वेरिएंट्स होता है। तो आज के दिन में ये एक एनिमल है, मछली है, एक थिंग है। ऐसे नहीं है कि ओनली छोटे बच्चे को अच्छा लगता है, छोटे बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी हो, ये एक एनिमल को सब लोग पसंद करते हैं एंड देखते रहते हैं। सो you need to think if you want to have a enterprise, कौन सा एरिया में आप हर चीज कर नहीं सकते। आप एक्वेरियम भी ओनली प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर सेवरल एरियाज यू कैन थिंक ऑफ doing that. For example, Dr. Behra was mentioning the light feed, the polychaete worms you want to have, or anything, any trade is so important today. यहाँ जहाँ daily basis में there are people who only advisory, only क्या बोलते हैं टेली एडवाइजरी भी करेंगे। that is you need to create your name, that is important। आज के दिन में इंडिया में कहीं भी ऑर्नामेंटल का रिलेटेड कुछ भी हो जाता है, डॉक्टर अतुल जैन को बुला लेते हैं। सही है, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड ए नेम इन द इंडस्ट्री, इजंट इट? तो वो भी इम्पोर्टेंट होना जरूरी है, ओनली पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में जो लोग वो पद्मश्री पद्मभूषण उसके पीछे में सब दौड़ते हैं, बट हम जब दूसरा अवार्ड बोलते हैं लोग पूछते हैं कितना पैसा मिला वो अवार्ड में, लेकिन कोई पूछता है पद्मश्री में कितना पैसा मिला, पद्मभूषण, लेकिन उसके पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट नेम है। दैट इज ए रिकॉग्निशन ऑफ समबडी विथ ए पद्मश्री और तो गेटिंग ए रिकॉग्निशन इज इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू बी काउंटेड इन दैट इंडस्ट्री दैट एक्स पर्सन इज गुड इन समथिंग, ये होना जरूरी है। एंड मुंबई जैसे जगह में तो शायद इंडस्ट्री करना बहुत इजी है क्योंकि यू हैव मोर क्लाइंट्स हु हैज परचेजिंग पावर इज काफ़ी ज़्यादा है। आई चूज टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज थॉट मैंने वही साहू साहब को मैं पूछ रहा था कि यहाँ कुछ किसान भाई भी होंगे शायद, इसीलिए मेरा हिंदी इतना बढ़िया नहीं है, बट आप लोग को समझ में आता होगा। बट ऐसे भी मत बोलिए कि ये इसका हिंदी बहुत ख़राब है। क्यों? मेरा जो हिंदी का देन कौन है? मुंबई है। क्यों? वो ओनली फिल्म देख के हम लोग हिंदी सीखे हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए हमारा जो टीचर है, हिंदी टीचर, वो मुंबई है। तो ठीक है। तो व्हाट आई सिंसियरली थिंक दैट दिस 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है, एक जितना भी टाइम आपको मिलेगा, ट्राई टू लर्न एंड प्रैक्टिस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर ट्राई टू इनोवेट। और ऐसे नहीं है कि यहाँ जो बोलेंगे ये सब सही है। आज के दिन में दुकान को जब जाते हैं 1000 डिफरेंट वेराइटीज़ का आपका डिजाइन मिलेगा। एंड टुडे डेट डिजाइन पाना भी बहुत ईजी है, नहीं? आप जस्ट डाल देने से जो AI आज है क्रिएट करके आपको नया डिजाइन दे देगा, उसको इंटीग्रेट करना जरूरी है। कि हाउ डू यू इंटीग्रेट, इनोवेट एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टुडे डेट। पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू डिस्प्ले थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। वही मैं बोल रहा था कि अभी सुबह कल में थोड़ा भूख लग रहा था, बनारस एयरपोर्ट में बैठा था, मैं सोचा कि कुछ स्नैक्स ले लूँ। देन एक दुकान देखा, अंदर में गया, वो मुरमुरा है, पता है ना मुरमुरा? यू विल नॉट बिलीव इट इज ए स्मॉल पैकेट ऑफ मुरमुरा, इतना कम से ज़्यादा 50 ग्राम होगा, उसमें 2-4 शायद। एंड मैं जब रिटेल देखा वापस आ गया। कंजूस नहीं हूँ मैं,
कंजूस नहीं हूँ, बट इतना भी रिच नहीं हूँ कि 200 रुपया दे के 50 ग्राम का मुरमुरा खरीदूँ। ठीक है। तो आज के दिन में पैकेजिंग इज सो इम्पोर्टेंट, हाउ यू सेल इम्पोर्टेंट, हाउ यू अट्रैक्ट योर क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट, यही इम्पोर्टेंट है। तो आज के दिन में लोगों के पास पैसा है, मेरे जैसे 90 लोग जाके पैसा दे के वापस आएंगे, बट 10 लोग तो खरीदेंगे। आपको वही 10 लोग को चुनना है, किसके पास पैसा होगा, नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। आप ये हमारा विजय बेहरा साहब हैदराबाद से आते हैं। हैदराबाद आप जानते हैं थोड़ा गर्मी जगह है, इजंट इट। आप ट्राउट फार्मिंग कहाँ होता है, कोल्ड रीजन में होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल। आज के दिन में द स्टेट ऑफ आर्ट फार्म, ट्राउट फार्म है कहाँ है, हैदराबाद में। हमारा जो एक एंटरप्रेन्योर है वो हैदराबाद में ट्राउट फार्मिंग करता है, पूरा जो उसका फार्म को, इंडोर फार्म को पूरा कोल्ड करके 10 डिग्री से कम करके रखा है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत पैसा, 0 डिग्री करता हाँ 0 तो वो करता है, लेकिन जो फार्मिंग 10 डिग्री से कम, 10-12 डिग्री से कम करता है। कितना पैसा इन्वेस्ट करता होगा ओनली एनर्जी के लिए, आप सोचिए। लेकिन फिर भी वो खुश है, पैसा कमाता है। क्यों कमाता है? मैं उनको पूछा आप कितने पैसे में बेचते हैं, ट्राउट का कॉस्ट कितना, आप हिमाचल जाएंगे और उधर भी जम्मू कश्मीर जाएंगे 700, 800, 500, 600, 700, 800 इतना ही होता है। वो बेचता है 3000 रुपया। मैं बोला कि 3000 कहाँ से, कैसे बेचते हो? नहीं, मैं हर हफ्ता में मामूटी को भेजता हूँ। और मामूटी को जानते हैं ना, केरला का फिल्म स्टार है। ऐसे 10-15 एक मैं याद आया, क्योंकि मैं मलयालम थोड़ा जब पिक्चर देखता था जब मेरा मास्टर डिग्री टाइम में केरला में, तो मामूटी याद है, इसीलिए मैं मामूटी बोल दिया। ऐसे 8-10 फिल्म स्टार का नाम बोल दिया वो। तो ही कुड कैप्चर द क्लाइंट हु हैज ए परचेजिंग पावर। तो आप लोग को ये एक ट्रेड है, जैसे जो नॉन फूड स्पेसिस है, ऑर्नामेंटल हो, पर्ल हो, ये सब नॉन फूड स्पेसिस, ये का मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ यू सेल इज इम्पोर्टेंट। जो मोती पालन करते हैं, हम एक मोती आज के दिन में डिजाइनर मोती भी आता है, CIF में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि सम ऑफ यू में बी इंटरेस्टेड फॉर दैट। जो सीप से होता है, मसल में करते हैं। देन लोग पूछते हैं ये मोती का दाम कितना है, कितना पैसा मुझे मिलेगा एक मोती। जब मैं पूछता हूँ, बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि वही मोती आप गांव में प्रोडक्शन करते हैं, गांव को लोगों को दिखाएंगे, वो 50 रुपया से भी लेगा नहीं, 50 रुपया भी देगा नहीं, कौन देगा? वही चीज़ थोड़ा छोटा सिटी को लाएंगे तो 200 रुपया में बेच सकते हैं, नहीं। वही को आप मुंबई लाएंगे, कहीं बड़ा जगह में आप डिस्प्ले कर देंगे तो मैं शायद 1000 मिलेगा। उसी को आप कोई फिल्म स्टार वैसे लाइफ है को डाल देने से थोड़ा जो सेम मोती को एक बार पहन के इधर से उधर चला जाने से लोग बोलेंगे बढ़िया दिख रहा है, कहाँ से लाए? देन चाइना जापान बोल देंगे, पैसा हो गया। वही होता है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट वी प्रोड्यूस, उसके नाम थोड़ा आप प्रोडक्शन यहीं से करिए। मुंबई से आप देखे होंगे, ये ट्रेड टैक्टिक है। मैनी थिंग्स आर पैकेज्ड, प्रोड्यूस्ड, पैकेज्ड। उसमें आप हिंदी में मत लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, फ्रेंच में भी डाल दीजिए, एंड ओनली आप वही लिखिए, फ्रेंच में भी लिखिए मेड इन इंडिया, बट और या अरबिक में ऐसे कुछ कर दीजिए। लोग सोचेंगे इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट है ना। तो मार्केटिंग करना आज के दिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग, हाउ डू यू मार्केट योर प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया। धन्यवाद देना चाहूँगा कि साहू साहब को कि मुझे ये मौका दिए। हम लोग और कुछ करते नहीं, ओनली बोलते हैं, ठीक है। लेकिन करना आप लोग का है।
करना आप लोगों को है, कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंगे तो क्या करेंगे, व्हाट इज दैट न्यूनेस यू कैन ब्रिंग इन योर बिजनेस, योर थिंकिंग, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। होपफुली यू विल बी लर्निंग समथिंग। इफ 1% ऑफ यू, 1% ऑफ यू start some business, or 2%, 5% of you keep aquarium at your home, our job is done. Thank you very much.